السلام علیکم. کلاس 11th سبجیکٹ اکاؤنٹنسی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیجر. اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے پچھلے 1-2 لیکچر میں بکس آف آرڈر انٹری کے بارے میں پڑھا. اس میں ہم نے یہی پڑھا کہ ہم ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں آن اے کرونالوجیکل آرڈر. اسے ہم کہتے ہیں بکس آف آرڈر انٹری. کیونکہ اس میں ہم ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں فار دی فرسٹ ٹائم آن اے کرونالوجیکل آرڈر ایز پر دیئر اوکرنس. لیکن اس میں ہم سمپلی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں. ہم اس میں نہ کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں نہ کوئی ہم پوسٹنگ کرتے ہیں، بٹ وی آر سمپلی ریکارڈنگ دی ٹرانزیکشنز ان دی بکس آف آرڈر انٹریز. اب ایک بزنس انٹرپرائز کے لیے ایک یہ ضروری ہے کہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ایک کلاسیفائڈ مینر میں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے لیجر. لیجر وہ بک ہوتا ہے کمپنی میں جس میں کمپنی کے سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. وہ بک جس میں کمپنی کے سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں لیجر. یہ اکاؤنٹس ہم کیسے بناتے ہیں، کیسے پریپیئر کرتے ہیں، اور ان کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ہم کہاں سے لاتے ہیں، وہ ہم بکس آف آرڈر انٹری سے لاتے ہیں. کیونکہ جو ہم ٹرانزیکشن وہاں ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ہم پھر پوسٹ کرتے ہیں ٹو دیئر ریسپیکٹیو اکاؤنٹ. اسے ہم کہتے ہیں پوسٹنگ. جب ہم ٹرانزیکشنز کو ٹرانسفر کرتے ہیں فرام دی بکس آف آرڈر انٹریز ٹو دیئر ریسپیکٹیو لیجر اکاؤنٹ، اسے ہم کہتے ہیں پوسٹنگ. کیونکہ اکاؤنٹ ہم کیسے بنائیں گے؟ جب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی، کوئی ٹرانزیکشن ہوگی، اور جب ہمارے پاس ٹرانزیکشنز یا انفارمیشن اویلیبل ہے کن میں، بکس آف آرڈر انٹریز میں، سو اٹ بیکمز ایزی فار وی ٹو پریپیئر ریسپیکٹیو لیجر اکاؤنٹس. جب ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی، ٹرانزیکشن ہوں گے جرنل میں یا سپیش پر بکس میں، تب جا کے ہمیں یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم آسانی سے لیجر اکاؤنٹس بنائے. سمپلی لیجر ہم اس بک کو کہتے ہیں جس میں کمپنی یا بزنس انٹرپرائز کے سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اور جب ہم ٹرانزیکشنز کو ٹرانسفر کرتے ہیں فرام دی بکس آف آرڈر انٹری ٹو دیئر ریسپیکٹیو لیجر اکاؤنٹس، اسے ہم کہتے ہیں پوسٹنگ. کیونکہ جب ہم ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں جرنل میں، ہم پھر اسی جرنل تک محدود نہیں رہتے ہیں بلکہ ہمیں اکاؤنٹس بنانے ہوتے ہیں. اس اکاؤنٹس کو بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرانزیکشنز کو ٹرانسفر کرتے ہیں فرام دی بکس آف آرڈر انٹری ٹو دیئر ریسپیکٹیو اکاؤنٹس، جس سے ہم پھر لیجر میں اکاؤنٹس بناتے ہیں. کراپر ایل-سی کوپر کیا کہتا ہے لیجر کے بارے میں؟ یہ کہتا ہے کہ وہ بک جس میں ہمیں کلاسیفائڈ اور پرماننٹ ریکارڈ سارے ٹرانزیکشنز کا ملتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لیجر. لیجر وہ بک ہوتی ہے جس میں کلاسیفائڈ اور پرماننٹ ریکارڈ ہوتا ہے ٹرانزیکشنز کا، اسے ہم کہتے ہیں لیجر. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ایل-سی کراپر کی ایک ڈیفینیشن ہے. اب ہم پڑھیں گے یوٹیلیٹی آف لیجر. What are the utilities of ledger? First one is quick information about particular items. اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہمیں ایک کوئک انفارمیشن ملتی ہے کسی آئٹم کے بارے میں. اگر ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ کتنی سیلز کمپنی میں ہوئی ہے، سو وی کین ایزیلی فائنڈ آؤٹ ڈیٹ. کیسے؟ ہم سیلز بک کھولیں گے اور اس میں ہم سیلز اکاؤنٹ کھولیں گے تاکہ ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن ملے سیلز کے بارے میں. کیونکہ جو ہم سیلز اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں ہم کیش سیلز ایز ویل ایز کریڈٹ سیلز دونوں لکھتے ہیں. تو جب ہمیں سیلز کے بارے میں انفارمیشن پتہ کرنی ہوگی تو ہم آسانی سے وہ ہم اوبٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی سیلز اکاؤنٹ اوپن کریں گے، وہاں پر ہمیں انفارمیشن ملے گی. یہ جو لیجر ہے اس کا جو مین
बेनिफिट है ये है कि हम आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शंस। हम क्या करते हैं, लेजर में हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का, जितने भी ट्रांजैक्शंस कंपनी में होते हैं उनका हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। और जितने भी अकाउंट्स हम बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। इससे क्या होता है, एक प्रॉपर कंट्रोल होता है हमें कंपनी के ट्रांजैक्शंस पर। थर्ड वन इज हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो हम ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बनाते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें अकाउंट्स की मिलती है। तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में लेजर का एक अहम रोल होता है। वी आर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। फोर्थ वन इज हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बिजनेस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, ये हम कैसे बनाते हैं, these statements or these accounts are prepared on the basis of information which we are getting from the ledger accounts. फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, ये है फॉर्मेट किसका, लेजर अकाउंट का। जैसे कि मैंने आपको कहा, लेजर वो बुक है जिसमें कंपनी के सारे अकाउंट्स होते हैं। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, डेबिट, और राइट साइड में क्रेडिट, नीचे है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो। ये आपको समझना ज़रूरी है। जब हम जर्नल बनाते थे तो उसमें हम लिखते थे लेजर फोलियो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, जर्नल फोलियो। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम द बुक्स ऑफ और टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स, तो हमें उसमें जर्नल फोलियो का नंबर, पेज नंबर लिखना ज़रूरी होता है। जिस पर हमने जर्नल एंट्री की है या जिस पर हमने जर्नल बनाया है उसका पेज नंबर क्या है वो हमें किस में लिखना है, जर्नल फोलियो में। और जब हमने लेजर अकाउंट बनाया है तो किस पेज पर हमने ये लेजर अकाउंट बनाया है उसका जो पेज नंबर वो हम कहाँ लिखेंगे, जर्नल में। जर्नल जो हम जर्नल कर, जिस बुक पे हम जर्नल करते हैं उसमें हम लिखेंगे कि जर्नल लेजर फोलियो, और यहाँ पर लिखेंगे हम जर्नल फोलियो पेज नंबर ऑफ जर्नल, और वहाँ पर हम क्या लेंगे, पेज नंबर ऑफ लेजर। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर, दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। और एक अकाउंट सिस्टम के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है, जर्नल इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ और एंट्री, और जो लेजर है इट इज़ द सेकंड एंट्री। क्योंकि वो एंट्री जो बुक ऑफ और एंट्री वो जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम पोस्ट करते हैं उन दिए रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स, इसलिए हम कहते हैं लेजर को सेकंड एंट्री। जर्नल जो है इससे हम कहते हैं बुक ऑफ सोर्स एंट्री, क्योंकि ये हमें ज़्यादा एविडेंस प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू लेजर, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये जो हम जर्नल बनाते हैं इसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लेकिन जो जर्नल है इज़ अ बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन जब हम जर्नल बनाते हैं वहाँ पर हम ट्रांजैक्शन एक बेस लेते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, लेकिन जब हम लेजर बनाते हैं इसमें हम एक अकाउंट को बेस लेते हैं फॉर क्लासिफिकेशन के लिए। और जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द जर्नल में, उससे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। और वो प्रोसेस जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन लेजर में उसे हम कहते हैं पोस्टिंग।
یہ क्वेश्चन कभी कभार आता है ऑब्जेक्ट टाइप का, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज कॉल्ड, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे जर्नलाइजिंग, और द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर इज नोन एज पोस्टिंग. क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं. एज यू नो देयर आर टू अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. टेम्पोररी एंड परमानेंट अकाउंट्स. ट्रेडिशनल में है परमानेंट अकाउंट्स रियल एंड पर्सनल, और टेम्पोररी अकाउंट है ऑल नॉमिनल अकाउंट्स. सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है जितने भी परमानेंट अकाउंट होते हैं उनको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं. इनकी जब हम बैलेंस करते हैं तो उसके बाद हम इनको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं. लेकिन जो टेम्पोररी अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. आफ्टर दैट हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इसलिए हम इनको कहते हैं टेम्पोररी अकाउंट, क्योंकि इनको हम एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जब हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, बैलेंसिंग हम अन्य परमानेंट अकाउंट्स की करते हैं. टेम्पोररी अकाउंट्स जो होते हैं इनकी हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं, इनको हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ये था ट्रेडिशनल अप्रोच. और मॉडर्न अप्रोच में परमानेंट अकाउंट है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और टेम्पोररी अकाउंट्स हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट. फिर से मैं आपको समझाऊँ, टेम्पोररी अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, और आफ्टर डेट हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में. ये जो परमानेंट अकाउंट होते हैं इनको हम क्लोज नहीं करते हैं, बल्कि इनके हम सिर्फ बैलेंसिंग करते हैं. पोस्टिंग फ्रॉम बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री टू द लेजर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल. इट मीन्स ट्रांसफरिंग अमाउंट्स और ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट. जब हम जर्नल से ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांजैक्शंस को, किस में, रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में. इसका जो मेन मकसद यही होता है कि हमें एक समराइज्ड रिकॉर्ड मिले, एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन मिले ट्रांजैक्शंस के बारे में इन ए क्लासिफाइड मैनर, ताकि एक नेसेसरी कंक्लूजन हम ड्रा कर सकें. कि एक जर्नल जब हम बनाते हैं तो उसमें हम इन समराइज्ड या इन क्लासिफाइड मैनर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें हम एक क्लासिफाइड अकाउंट हम बनाते हैं. बेसिक रूल ऑफ पोस्टिंग. जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें ये कुछ रूल्स समझने ज़रूरी हैं. जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, जिसका भी हम अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम उस अकाउंट में नहीं आना चाहिए. दिस इज़ द फर्स्ट रूल. फॉर अगर हमने परचेज अकाउंट बनाया तो जो नीचे हम परचेज अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल हमें फॉलो करना है. और दूसरा क्या है, हर एक डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है. दीज आर टू रूल्स विच वी शुड फॉलो व्हाइल पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर. जब हम जर्नल की बात करते हैं, जर्नल ऑफ गोइंग कंसेप्ट की बात करते हैं, तो यूजुअली हम कुछ ओपनिंग एंट्रीज देखते हैं. उन ओपनिंग एंट्रीज को हम क्या करते हैं, जितने भी ओपनिंग एंट्रीज हैं, जिसका डेबिट होगा वो हम डेबिट में लिखेंगे, और जिसका क्रेडिट होगा हम क्रेडिट में लिखेंगे. और जो बैलेंस हमें होगी, अगर एसेट साइड ज़्यादा होगा लायबिलिटी साइड से, तो इट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल होगी. अगर कैपिटल भी होगा तब, लेकिन जो लायबिलिटीज़ वाला साइड है वो ज़्यादा है किस साइड से, एसेट साइड से, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो बनेगी गुडविल. और आपको ये भी पता है कि जितने भी एसेट्स कंपनी में होते हैं उन क्या होता है, उनकी डेबिट बैलेंस होती है, और कैपिटल और लायबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है. एक नीचे एक एग्जांपल है, हमें क्या करना है, इनको शो करना है इन द लेजर. एग्जांपल, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए इन 1 जनवरी 2020. दीज आर द ओपनिंग एंट्रीज. अब हमें
पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज को कैसे दिखाते हैं जर्नल में। एसेट्स है और यह है लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स रामपाल pause the necessary entries and show how would these items shall appear in the respective ledger account। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनकी जर्नल एंट्री करनी है और आफ्टर दैट ये हमें दिखाना है कि हम इनको कहाँ पे दिखाएंगे इन दी लेजर अकाउंट्स में। इन द बुक्स ऑफ ए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल में हम लिखेंगे डेट जो ऑलरेडी लिखा गया है जनवरी 1, 2020। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितने भी एसेट्स कंपनी में होते हैं उनकी जो बैलेंस होती है वो डेबिट बैलेंस होती है। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्निचर अकाउंट डेबिट टू रामपालस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रेडिटर है वो है रामपाल। क्रेडिटर की बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस। ओके, अब हमने जर्नल बनाया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं किन से, लाइबिलिटी से। रूल है ईच डेबिट हैज़ ए इक्वल क्रेडिट, हर एक डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट वाला ज़्यादा है क्रेडिट वाले से, तो यहाँ पर जब ओपनिंग एंट्री की बात आती है, अगर ओपनिंग एंट्रीज में एसेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटी से, तो जो बैलेंस की फिगर बचेगी वो होगी कैपिटल। अगर कैपिटल नहीं होगा क्वेश्चन में, यहाँ पर कैपिटल नहीं था क्वेश्चन में, सो ये जो कैपिटल है, ये जो बैलेंस फिगर है, दिस इज द कैपिटल ऑफ द फर्म, वो है 65,000। अगर कैपिटल भी होगा और उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं एसेट से, तो जो बैलेंस फिगर बचेगी एसेट में वो होगी गुडविल। अब हम आसानी के साथ लेजर अकाउंट बनाएंगे, हर एक का लेजर अकाउंट हम अब आसानी के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो जब हम ओपनिंग एंट्री की बात करते हैं यहाँ पर आप सीधा लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, डायरेक्टली हम बैलेंस को क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन, क्योंकि जिसका डेबिट बैलेंस होगा वो हम डेबिट लिखेंगे और जिसकी क्रेडिट बैलेंस होगी वो हम क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पर कैश अकाउंट की क्या है, डेबिट बैलेंस, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। स्टॉक का भी हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये हम ओपनिंग एंट्रीज की बात जब हम करते हैं तो उस वक्त ऐसा हमें करना पड़ता है जब हम ओपनिंग एंट्रीज की बात करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए फर्निचर अकाउंट, दिस इज आल्सो एन एसेट, तो इसकी भी क्या होगी, डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इन द बुक्स ऑफ रामपाल यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर, और वो किस में आता है, लाइबिलिटीज़ में आता है। तो मैंने आपको अभी भी कहा लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स हैव है क्रेडिट बैलेंस, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटीज़ ही इनकी जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होती है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी भी क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस, तो वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जिनसे हमने ओपनिंग एंट्रीज के बारे में पढ़ा, हाउ टू रिकॉर्ड ओपनिंग एंट्रीज इन द जर्नल। सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पोस्टिंग फ्रॉम स्पेशल पर्पस बुक। आज हमने पढ़ा पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, जब जर्नल से हम कैसे पोस्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को। फिर से मैं आपको बताऊं, जर्नल वो बुक है जिसमें कंपनी के सारे अकाउंट्स होते हैं, और जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ऑर्डिनरी टू द लेजर, उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। और जब वो प्रोसेस जिससे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल, उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग लेजर। थैंक यू वेरी मच।